Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is, can a stone be a dangerous weapon? Why news? Recently in the case of Kumaran versus State of Kerala, the court clarified that a stone could qualify as a dangerous weapon under section 326 of the IPC depending upon its nature, size, sharpness and the potential to cause death when used in an offensive manner. Background of the case: on July 1st, 1999, an altercation took place in Edakara, Kerala. Petitioner allegedly pushed the victim down, grabbed his neck and struck his face with a stone, causing a facial fracture. Petitioner was initially convicted with section 326 of IPC, receiving 1 year of simple imprisonment and a fine of ₹2,000. Petitioner appealed to the additional session court, which upheld the conviction and sentence. Also, he filed a revision petition before the Kerala High Court, which reviewed the previous judgments. What were the court observations? Justice Kausar Edappagat acknowledged that section 326 categorizes dangerous weapons into inherently dangerous ones, example knives, guns, etc., and those whose use, nature or size can make them dangerous. The court stated that stones, while not inherently dangerous, can be considered dangerous weapons if used to cause death or grievous harm, such as striking the face. The prosecution failed to prove that the stone qualified as a dangerous weapon under section 326 IPC. The victim's injury, including contusion and swelling, didn't meet the criteria for grievous hurt under section 320 IPC. Considering petitioner's age 73, illness and 19-year-old trial, the High Court reduced his sentence up to 3 days imprisonment already served plus a fine of ₹2,000. Provision involved is section 118 of Bharatiya Nyaya Sanhita, which includes provision for both simple and grievous hurt caused by dangerous weapons such as sharp instruments, fire, explosive substances and even animals. Punishment under section 118 clause 1 is simple hurt, which can lead up to 3 years of imprisonment or a fine of ₹20,000, and grievous hurt under section 118 clause 2, which mandates imprisonment of at least 1 year extending up to 10 years or life imprisonment. Case laws involved: first, Rakesh versus State of Delhi 2023, where the Supreme Court affirmed that dangerousness of a weapon depends upon its contextual use and not its inherent characteristics. Second, State of UP versus Indrajit, where the court ruled that even everyday objects could be classified as dangerous weapons based on their use in a criminal act. It's the time for practice question. Which section of the IPC deals with voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means? Option A, section 306, option B, section 326, option C, section 118, and option D, section 376. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है, क्या पत्थर एक खतरनाक हथियार हो सकता है? आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कुमारन बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पत्थर अपनी प्रकृति, आकार, तीक्ष्णता और आक्रामक तरीके से उपयोग किए जाने पर मृत्यु का कारण बनने की क्षमता के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत एक खतरनाक हथियार के रूप में योग्य हो सकता है। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि। 1 जुलाई 1999 को केरल के एडक्करा में एक झगड़ा हुआ। याचिकाकर्ता ने आरोपित किया कि उसने पीड़ित को नीचे धक्का दिया, उसके गले को पकड़ा और उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया, जिससे उसके चेहरे में फ्रैक्चर हो गया। याचिकाकर्ता को शुरू में आईपीसी की धारा 326 यानी खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें उसे 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील की, जिसने सजा और दोष सिद्धि को बरकरार रखा। इसके साथ ही उसने केरल उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसने पूर्ववर्ती फैसलों की समीक्षा की। आइए अब जानते हैं न्यायालय के अवलोकन के बारे में। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागत ने स्वीकार किया कि धारा 326 खतरनाक हथियारों को स्वाभाविक रूप से खतरनाक, जैसे चाकू, बंदूक आदि, और उन हथियारों में वर्गीकृत करती है जिनका उपयोग प्रकृति या आकार उन्हें खतरनाक बना सकता है। न्यायालय ने कहा कि पत्थर हालांकि स्वाभाविक रूप से खतरनाक नहीं होते, लेकिन यदि उनका उपयोग मौत या गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, जैसे कि चेहरे पर प्रहार करने के लिए, तो उन्हें खतरनाक हथियार माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पत्थर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत एक खतरनाक हथियार माना जा सकता है।
पीड़ित की चोटें जिनमें चोट और सूजन भी शामिल है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के तहत गंभीर चोट के मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। याचिकाकर्ता की उम्र 73, बीमारी और 19 साल के मुकदमे को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने उसकी सजा घटाकर 3 दिन की कैद और 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया। आइए अब नजर डालते हैं शामिल प्रावधान पर। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 118 में खतरनाक हथियारों जैसे कि तेज धार वाले उपकरण, आग, विस्फोटक पदार्थ और यहां तक कि जानवरों से होने वाली साधारण और गंभीर चोट के लिए प्रावधान शामिल हैं। सजा: धारा 118(1) के तहत साधारण चोट पहुंचाने पर 3 साल तक की कैद या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 118(2) के तहत गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम 1 साल की कैद या अधिकतम 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आइए नजर डालते हैं संबंधित केस पर। राकेश बनाम दिल्ली राज्य 2023। सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि किसी हथियार की खतरनाकता उसके अंतर्निहित गुणों पर नहीं बल्कि उसके प्रासंगिक उपयोग पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंद्रजीत 2000। न्यायालय ने फैसला दिया कि रोजमर्रा की वस्तुओं को भी आपराधिक कृत्य में उनके उपयोग के आधार पर खतरनाक हथियार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की कौन सी धारा खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है? विकल्प A धारा 306, विकल्प B धारा 326, विकल्प C धारा 118 या विकल्प D धारा 376। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।